delighted that everyone is participating. It's a fair with a lot of artists, young artists who want to show their works, and young collectors and young others who want to come and see art and get introduced to art. So this is a wonderful place for people to come. It has been 12 years since it has started, and this is the 12th edition, 10 years since it has been started. It's also in Bangalore, it's also in Delhi, and so it is widely spread, and I hope now they will go to Calcutta, to Eastern India. Thank you. One last thing I want to ask you, ma'am. How do you feel about the efforts of Rajendra Ji? It's not very easy to do this. I think he has put Herculean effort in doing this, and he has done it with great sincerity and with great enthusiasm. And then, beginning with Bombay, he has taken it to various places. So this is a wonderful thing he has done, and I congratulate him for that. Ma'am, what is the one message you have to give to the youngsters for the... I think this gives you an idea of what art can be, the variety, the facets of art and all, and it will inspire them to work in some area like that. Thank you. Okay, thank you. It could be modern art, it could be traditional art, it could be abstract art, but when you keep seeing... राजेंद्र जी को, जिन्होंने इंडिया आर्ट फेस्टिवल का ये आयोजन किया है नेहरू सेंटर मुंबई में, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से जो यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है पेंटिंग्स का, अलग अलग तरह के पेंटिंग्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स. सो इट वाज अमेजिंग टू सी इतना वास्ट डिफरेंस सब पेंटिंग्स में. And I would like to congratulate Rajendra ji and all the artists who are participating. कि it was very inspiring. It was very inspiring. सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्ट से दूर हटते हुए नजर नहीं, if you have an art in you, you are blessed. Always think about it कि अगर आपको मालिक ने ये कला दी है, then I'm sure you are blessed, क्योंकि ये हर एक का काम नहीं है. हर एक पेंटर, हर एक आर्टिस्ट अपने कॉन्सेप्ट से एक पेंटिंग बनाता है. वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आना, ये दैट इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग थिंग. सो मैं तो सबको प्रणाम, शत प्रणाम करता हूँ, जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ नए जूनियर कलाकार भी हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको भी उन्होंने मौका दिया है. तो आई विश देम ऑल द बेस्ट. सर आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में और लोगों को साथ में आना चाहिए ऐसे आर्ट एग्जीबिशन? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर. अभी हमारे मित्र हैं जीतू शंकर जी, बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट. तो उन्होंने जब मुझे बोला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा नहीं, अरे ये तो जाना ही चाहिए. तो किसी भी कलाकार को आप बोलेंगे, दिल बहुत प्यार से आएंगे. सिटीज़ में, इंडिया में इतने सारे सिटीज़, बिग सिटीज़, मेजर सिटीज़ हैं, सभी मेजर सिटीज़ में ऐसे आर्ट फेयर होना चाहिए, और ये आर्ट जो है आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. अभी क्या हो गया है कि बॉम्बे जैसे कमर्शियल सिटी है, यहाँ पे लोगों को देखने मिलना है, लेकिन पुणे में जो लोग हैं उनको ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है. तो दे शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू सी दिस काइंड ऑफ आर्ट fair. So I feel that this kind of fairs, it should go all over India, so that everybody can see, everybody can enjoy, everybody can interact with the artists. Even amongst the artists all over India, there are so many artists are there. If they exhibit together, they can interact each other, they can see each other's work, and they can enjoy, and they can always the development can happen, progress can happen. In Europe, when the art, there is a lot of competition was there. That is how the development in art it happened. So in India also, if it happens like this, I'll be very happy. And all over even the government, they can make so many museums, and we can have many galleries in India, and armed public they can enjoy the art. Thank you. Sir, what do you feel about Rajendra Ji's efforts? It's not so easy No, to please everybody. it is tremendous. Rajendra, what he has done, this is the second time I'm inaugurating his this festival. He's doing a tremendous job. Initially, I know because initially he started the art camps
and from there he got idea to have a art festival, and he's doing a tremendous job. I hope he should do more art fair, and he should go all over India and do the art fair so everybody can see, and really the progress can happen in the art field. Thank you. कोई भाषा नहीं है, इंडिया आर्ट फेस्टिवल पूरा भारत यहाँ दिख रहा है, भारत की संपूर्ण कला यहाँ दिख रही है। और मैं राजेंद्र जी के लिए क्या कहूँ, पहले ज़माने में राजा होते थे, कला की संरक्षण करते थे। इस समय तो राजा का दरबार नहीं है कला का संरक्षण करने के लिए, लेकिन इस समय के राजा है राजेंद्र जी, जो कि सारे कलाकारों को एक छत्र के नीचे लेके आए हैं, उनको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कला की संरक्षण कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ। कला एक, ईश्वर की तरह कला एक है, माध्यम अलग अलग है। हम जब गाते हैं तो कल्पना से ही गाते हैं, और जब एक चित्रकार अपनी कल्पना से, अपनी रंगों से उसको आकार देते हैं, तो कला एक है, माध्यम अलग अलग है। कला में हम लोग सब एक है, उस एक को प्रणाम करते हैं। और सभी कलाकार जो यहाँ आए हुए हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी एक एक कला लोगों के दिल में बसे और लोग अपने घर लेके जाए। थैंक यू सो आपको मच। लगता है कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन जो है आर्ट से, कला से बहुत दूर भटती नज़र आ रही है? हाँ, ऐसी प्रदर्शनी अगर होगी तो देखिए, ये हम कलाकारों की फ़र्ज़ है, हम जो देंगे बच्चे वो लेंगे। बच्चे तो क्लीन स्लेट है, हमें उनसे रूबरू कराना है, बच्चों तक पहुंचना है। तो मैं चाहती हूँ कि यंगर जनरेशन को यहाँ बुलाया जाए और उसको हमारे भारत की संस्कृति कला से परिचय करा जाए, क्योंकि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, तो ये कमी हम लोग दूर करेंगे, उनको हम बुलाएंगे। हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए यंग जनरेशन तक पहुँचेंगे कि वो आए, देखे और कला की प्रशंसा करें और उसको जाने, भारत की कला। एंड राजेंद्र जी जिन्होंने इतना बड़ा कार्य लास्ट 12 साल से ये कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है कि इतने आर्टिस्टों को ऑल ओवर वर्ल्ड से बुलाना। हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली सब आए हैं, और पूरे वर्ल्ड से कितने लोग आए हैं, और इस मंच पे अपनी आर्ट, अपना प्रतिभा दिखाना एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है। मैं इट्स रियली, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि इतने बड़े बड़े कलाकार, नए कलाकार आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी प्रतिभा लेके आ रहे हैं, जो सीनियर्स हैं वो अपनी प्रतिभा लेके आ रहे हैं। तो इतना कैनवस है, इतना उसका देखने का मज़ा आया आज के, इट्स अमेजिंग। और मतलब मैं राजेंद्र जी को बधाई दूंगा और तमाम आर्टिस्ट को बधाई दूंगा जो उन्होंने ये ऐसे मंच पे आके अपनी आर्टिस्टिक छाप को छोड़ दिया। जैसे आपने कहा युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेगी इस तरह की झांकियाँ, इस तरह की चीज़ें युवाओं को जी कैसे प्रेरित? युवाओं को प्रेरित करना मतलब ये ऐसा आर्ट है कि जो नए बच्चे कर रहे हैं, नए प्रतिभावान युवा कर रहे हैं, वो इस आर्ट को छोड़ना नहीं कभी भी, क्योंकि छोड़ेंगे वो पहली बात तो छूटेगा ही नहीं उनसे, क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज़ है कि वो छूटता नहीं है। पर ऐसे आर्ट फेस्टिवल होते रहने चाहिए जो नए प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिलते रहें और उनको और अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलते रहे। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो, उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि भैया आप इस ऐसे वाले कोई भी बड़े फेस्टिवल हो या छोटा फेस्टिवल हो, फेस्टिवल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। What's your take on India's art festival that you joined? It's beautiful. I think our artists are absolutely, the fineness with which they work and the colors that they use is so original to us as India. And I think that, for people coming from different states, getting a platform in Mumbai to hold an exhibition and getting, ahead, getting exposure, getting more people to appreciate your art is different. But to get an international, I think we need to do more to get them that international footing, so that, internationally people can enjoy their art and their talent. So that needs to be done. But it's always a pleasure to come to an art exhibition. My daughter is an artist too, so she loved it here. Yeah, she's chatting away with the artists. Can you speak something? Yeah, what did you like? Today.
It's just that I love Indian art specifically because it's so unique. Like you never find the way Indian artists paint their work Like and Gonda sculpt. art, Yeah, yeah. you don't find it anywhere. Which is why I would much prefer coming to an exhibition that's held in India by Indian artists than go abroad for an exhibition. Absolutely. And what else did you learn today? That we're very talented. Yeah. You Nice. you both seems to be very excited and excited. We saw you like Yeah, roaming and I come from a home of a lot of artists, painters. My mother used to paint. My aunt, my Masi, she's a painter, and I've spent a lot of time with artists. So yeah, I enjoy. I have a lot of paintings at home. I rotate my art. You know, sometimes I put certain artists, then again I put them away, and I put some other artists. And yeah, so today also we picked up Kumar. We picked up a nice Rajasthani painting, so we picked that up. So I love art. any projects lined up? Anything that you want to share? Yes, there is something lined up. लेडीज फर्स्ट लेडीज़ फर्स्ट सो बहुत बहुत अच्छा लगा वैसे भी आप ही बोलते हैं अच्छा तो बिकॉज आप नहीं बोलते तो बहुत बहुत अच्छा लगा इंडियन आर्ट फेस्टिवल में आकर पेंटिंग्स देखकर बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑफ आर्ट बट इट इज़ आर्ट एंड आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज तो यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखी वाराणसी की पेंटिंग्स देखी तो काबा की पेंटिंग्स भी देखी एंड महादेव जी की पेंटिंग देखी तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी की भी पेंटिंग्स देखी हॉर्स की पेंटिंग देखी तो साथ साथ में लेडीज़ और बच्चियों की पेंटिंग्स देखी जो अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहती हैं सो आई फाउंड एवरीथिंग विच अ ह्यूमन माइंड कैन इमेजिन आउट हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पर संग्राम जी के साथ आई बिकॉज संग्राम जी भी आई थिंक बहुत प्रेरित हुए होंगे मेरी तरह जी देखिए जो इंडियन आर्ट फेस्टिवल अपने आप एक बड़ी बात है इसका हिस्सा बनना या यहाँ पे आना थैंक यू अनुषा जी फॉर इनवाइटिंग अस और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट है परमात्मा उसने हम सब ढेर सारे नमूनों को डिफरेंट बनाया है और हम सब अपने आप में बेस्ट हैं और जितने कलाकार थे यहाँ पे सारे वन ऑफ द बेस्ट थे सारी पेंटिंग बेस्ट थी अब मैं तो उनको जज कर नहीं सकता ना क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है नहीं मगर जो भी देखा बहुत सुपर्ब था ये जितने भी कलाकार हैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं परमात्मा करे ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे हम अगली बार आएँ तो अगली बार 560 हैं 30 से 40 हैं तो अगली बार 2000 पेंटर हों और फिर मौका मिले आने का पायल जी आप दो पेंटिंग आप लेके भी जा रही हैं तो डिस्क्राइब करेंगे क्या पेंटिंग है वो किसकी है दो पेंटिंग्स हमको गिफ्ट की गई है एंड वन पेंटिंग इज़ ऑफ वाराणसी विच हैज़ ब्लैक एंड ऑरेंज कमिंग आउट ऑन इट दूसरा पेंटिंग है फैल्कन का एंड वो पृथ्वी सोनी जी ने ड्रॉ किया है पेंट किया है पृथ्वी सोनी जी इज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन्होंने सुभाष घाई जी के साथ बहुत फिल्में करी है जहाँ पर उस समय पोस्टर्स को उन्होंने ड्रॉ किया है जब वी डिड नॉट हैव द मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो पृथ्वी सोनी जी इन हिज 70s इज़ ड्राइंग पेंटिंग्स एंड मैं उनको देख के बहुत बहुत प्रेरित हुई क्योंकि मेरे पापा भी 70s में हैं टचवुड एंड ही ऑल्सो कीप्स हिमसेल्फ बिजी एंड पृथ्वी सोनी जी अपने आप को इस एज पे बिजी करके पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एक पेंटिंग पृथ्वी सोनी जी की है एंड बनारस की जो पेंटिंग है उनके हाँ जी और उनके जो पेंटर साहब हैं वो परमेश पॉल जी हैं एंड बनारस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू विजिट आशा करती हूँ कि संग्राम जी मुझे शादी के बाद वहाँ पे ले जाए बनारस कश्मीर ये सारी जगह है जहाँ पे मुझे जाना मैं है मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा मोदी जी की वो है ना वो लोकसभा क्षेत्र मोदी जी का वहाँ पे दूसरा एक पेंटिंग से क्या सीखने को मिलता हम सबको कि ज़िंदगी है ना एक ऐसे ही सफ़ेद वो है एक बोर्ड है उसके ऊपर हम खूबसूरत कलर कर सकते हैं उसके ऊपर हम खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं और एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं ज़िंदगी में तो अच्छा करेंगे तो अच्छी पेंटिंग बन जाएगी अच्छी लगेगी खूबसूरत लगेगी और डेफिनेटली हम वाराणसी जाएंगे बनारस जाएंगे बिकॉज हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो लाइफ का पर्पस आई थिंक वाराणसी जाकर सब भारतीय लोगों को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए अच्छा लाइफ का पर्पस येस बिकॉज लाइफ इज़ अल्टीमेटली यू डोंट नो इट्स अनप्रडिक्टेबल हम सब को कब ऊपर का बुलावा आ जाए हमें पता नहीं है एंड वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इट्स जस्ट एज सिंपल और एज कॉम्प्लिकेटेड एज अच्छा आप मुक्तिधाम की बात करें जी पायल जी हाल ही में आपने धाकड़ का प्रीमियर अटेंड की थी और फिर आपने धाकड़ पे ट्वीट भी कर दिया कि मतलब कि धाकड़ मुनव्वर फारूकी के वोट्स को लेकर आपने ट्वीट किया है कि इनको 18 लाख वोट्स मिले थे तो उन्होंने धाकड़ का प्रमोशन अपने वोटर्स से क्यों नहीं करवाया तो जैसे ही ट्वीट किया था आपने तो
मैं ट्विटर पे तो नहीं हूँ, मेरा ट्विटर सस्पेंडेड है, इंस्टा पे है शायद। बट आई थिंक यहाँ पर हमने काफ़ी पब्लिसिटी दे दी ना सब चीज़ों को। तो अभी हम इंडियन आर्ट फेस्टिवल के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक इंडियन आर्ट के ऊपर बात करते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर तो हम कितना बात कर चुके हैं। मैम पर फिर भी धाकड़ के ट्वीट के बारे में क्या कहेंगी कंगना मैंने जी? जो मेरे को मैंने बोला ट्वीट था, किया था धाकड़ के लिए कंगना जी के लिए कि भैया फिल्म देखो, आप जाओ, इतनी अच्छी फिल्म हो, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। बिकॉज जो प्रोड्यूसर देखो। साहब हैं वो संग्राम जी को जानते हैं अभी भी, एंड आई बिलीव एक पिक्चर के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है पिक्चर को बनाने के लिए, सो एवरीबडीज हार्ड अर्न मनी इज़ इन्वॉल्व। तो उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर द प्रीमियर। बट जो मुझे कहना था धाकड़ के बारे में और कंगना जी के बारे में और उन जो रियलिटी शो का मैं हिस्सा थी वो मैंने बोल दिया, तो अभी उसके ऊपर और क्या बोलूं, आप समझ रहे हैं। एंड आई लाइक कंगना जी एंड हर एक्टिंग, और मैंने स्पेशली ट्वीट किया था उनके लिए कि वो बड़ी मेहनत की, उन्होंने फिल्म बनाई है। देखो चलना ना चलना अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में कोशिश होती है, वो बेहतर करनी हाँ, चाहिए। बट क्या करें, कर्मा होता है। लेकिन फिल्म का परफॉर्मेंस में काफ़ी सराहा गया है कंगना का, चाहे कुछ भी हो, बट परफॉर्मेंस काफ़ी सराहा गया, एक्ट्रेस काफ़ी सराहा गया। एक महिला के होते हुए ऐसा रोल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, एज अ महिला मैंने हरदम कंगना जी को सपोर्ट किया है। जब उनका ऑफिस भी तोड़ा गया था पॉलिटिकल